Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from the scratch even if you don't not have any programming background. In previous videos, we have already covered the topics like C language history, comparison of C language with the human language, character set, keywords, variables, constants, data types, mostly like particularly primary data types, format specifiers, input output with the printf scanf, operators, in which maybe we have covered arithmetic, bitwise, logical, rational, assignment operators, and so on. Conditionals like if else, nested if else, like that. We also covered the switch case, we covered the break statement, we covered loops for loop, while loop, do while loop, nested loops. We covered the continuous statements, we covered the arrays in which single dimension array, double two dimension array, and multi-dimension arrays. We also covered the string operations and the built-in functions uh, in a strings. Then in build libraries we have seen functions in which we have seen the call by value, call by reference, also recursion. Now in this particular video we will be covering structures and unions in detail. If you want to revise any of the topics which I just mentioned earlier, go to the channel and watch the respective videos to get more idea about on those topics. So guys, if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel so that I will not be limiting this channel with the C only. It will also have the Python, data structures with C, C++, Java, Shell, operating system, and mathematics too. So this is supposed to be grow in near future. So let's see what exactly we have on structures and union side in C language to deal with the structures and union. Yeah. So what exactly are we going to cover? We are going to cover structures, unions, and the next session topics. Now, what are the structures? So, a structure is a collection of one or more variables, possibly of different types, grouped under single name. It's a user-defined data type. Now, we know what are the primary data types and what are the user-defined data types. Now, we have already seen the primary data types. Primary data types are like integer, character, and float, but those are those are only meant to be stored a single type of variable. Okay, but what if, let's say, if you want to store some kind of data which has multiple type of values. For example, let's say a student. A student can have no name, roll number, class, school, right? So these are the different properties which belong to a single object. At that time, you would need a data type which will basically accommodate all of these properties in a single data type. Correct. So just to give you a quick right, as we actually define some variable of primary data type, compiler knows how much memory to be allocated for that primary data type, right? So let's say अगर integer, character और float इस तरह से हमने डेटा टाइप लिया किसी वेरिएबल का, तो कंपाइलर को पता होता है कि इंटीजर के लिए 4 बाइट लेना है, फ्लोट के लिए 4 बाइट लेना है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लेना है, राइट? सो कंपाइलर को पहले से पता होता है क्या करना है. बट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली यूजर डिफाइंड. ये स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली इज आर डेटा टाइप विच वी क्रिएट. यूजर ने तैयार किया हुआ एक डेटा टाइप है. तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर के लिए जो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करो. तो उसी के लिए पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो इफ यू लुक एट हियर, सिंटैक्स कैसे स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है पहले, देन उस स्ट्रक्चर का नाम. नाम, अभी ये जो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है, दिस इज फॉर थ्री डायमेंशनल पॉइंट. हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ज्योमेट्रिक फिगर. उसमें हर एक पॉइंट कैसे रहेगा, एक्स वाई जेड करके रहेगा. थ्री डायमेंशंस रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. So we this basically structure defines a point in a three-dimensional geometric figure. So x coordinate, y coordinate, z coordinate, और तीनों के तीनों क्या रहेंगे, इंटीजर. So इस तरह से
this structure, whenever you will say point, और अगर आपने point जैसे int x बोलो, when you say int x, so x will have integer inside that. But when you say point, then that particular variable will have three integers inside that. So point of the size of the point will be a, so size of the point structure will be what? Here 12 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. But now this is just a declaration. This really doesn't mean कि आपने इसका कोई वेरिएबल अब तक यूज किया है. ये जस्ट कंपाइलर को बताने के लिए है कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन इस तरह से. अगर आपको उसके वेरिएबल्स यूज करने हैं, अगर उसके वेरिएबल्स बनाने हैं, राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज इट. सो स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर है. एक डेटा टाइप है, करेक्ट, जिसमें थ्री, हर एक हर एक जो वेरिएबल रहेगा पॉइंट टाइप का, उसमें तीन और डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर एट्रीब्यूट्स रहेंगे. दैट इज एक्स वाई जेड. और these are the points in that in the three-dimensional space. A is a point which has x, y, z. B is a point which has x, y, z. C is a point which has x, y, z. And star D, मतलब क्या? D is a pointer, right, which is going to hold an address of the struct point type variable. एक तो हम जब जब इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी उसी वक्त हमको जो ग्लोबल वेरिएबल्स लगने वाले वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अदरवाइज अगर कहीं स्पेसिफिक जगह पे किसी के स्पेसिफिक फंक्शन में हमको अगर यूज करना है, तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट पॉइंट ए बी सी स्टार डी लाइन. तो यहाँ पे देर आर 5 वेरिएबल्स जो स्ट्रक्ट पॉइंट टाइप का डेटा होल्ड करेंगे. ए इज अ सिंगल वेरिएबल. इसका जो साइज रहेगा, दिस द साइज ऑफ ए विल बी व्हाट? 12 bytes. Size of B will be again 12 bytes. Size of C will again be a 12 bytes. Star D, size of D will be 4 bytes, but size of star D will be a 12 bytes or more than that maybe, because it may point to the array 2. Line 10 is basically this will hold the 10 points, 10 such a structure points. Okay, now we'll see the practical examples. Let's see what we have in the next slide. Yeah. So what are we going to cover as a part of practical exercise on the structures? We'll see how to declare the structures that we just saw theoretically. We'll also see how do we define the structure variables, how do we access the structured variable data, how the array of structures looks like, how do we deal with the pointers and the structures, how do we pass the structures to the function, and what exactly mean by type def keyword. Yeah. So let's go to the practical maybe ID, right, to see how exactly all of these things can be done practically. Okay, so here we have one program open, which where we'll write practical examples of structure and union. Now let's take an example. We want to actually deal with employee data in particular organization, in an organization, right? So there is some organization where the employee data is there. So we want to store, let's say, 5 employees data. We want to store 5 employees data in a memory. Now what every employee has, for practical purpose, what we will take, every employee has two properties as of now: name, salary, and three properties, let's say employee ID. Okay, so these are the three properties every employee will have. Now just think कि अगर आपको अभी 5 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है और एवरी एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय का है नाम, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, तो हम कितने कितने टाइप से कर सकते हैं? एक फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स फॉर ईच एम्प्लॉय. करेक्ट. हर एक एम्प्लॉय के लिए हम क्या करेंगे? 3 वेरिएबल लेंगे. कौन सा? एक नेम, राइट,
देन सैलरी एंड ईएमपी आईडी। लेकिन अभी 5 एम्प्लॉयज है तो दैट्स फाइन, राइट? इफ इट इज, लेट्स से इफ इट इज 5 एम्प्लॉयज, देन इट्स ओके। 5 एम्प्लॉयज के लिए कितने कितने वेरिएबल्स लगेंगे? फॉर 5 एम्प्लॉयज वी विल नीड, for 5 employees we will need 15 variables, correct? Which really is not a good programming practice. It's a bad programming practice. लेकिन स्टिल ठीक है, आपको पता है 5 एम्प्लॉयज है तो 5 एम्प्लॉयज के लिए 15 वेरिएबल्स तो आप यूज कर सकेंगे। लेकिन समझ लो आपका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है इससे भी, राइट? लेट्स से यू हैव 100 एम्प्लॉयज, तो कब कितने वेरिएबल्स लगेंगे? यू विल नीड लाइक 300 वेरिएबल्स, करेक्ट? तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, राइट? आप 300 वेरिएबल्स को कैसे ध्यान में रखोगे? अभी उससे भी अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लिया जाए, लेट्स से आपके 50,000 एम्प्लॉयज है, अब आपको कितने वेरिएबल्स लेंगे? आपको 1.5 लाख वेरिएबल्स लग जाएंगे। एंड नाउ maintaining 1,50,000 variables in a single program is not at all a good idea. Okay, सेकंड हम क्या कर सकते हैं? सेकंड हम 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं, तीनों की तीनों एरे, 3 एरे वेरिएबल्स, करेक्ट? अभी 3 एरे वेरिएबल्स कैसे रहेंगे? लेट्स से जितने नेम्स है, राइट? ऑल नेम्स इन नेम्स एरे, पूरे के पूरे नेम्स, करेक्ट? ऑल एम्प्लॉय आईडीज जाएंगे एम्प्लॉय आईडीज के एरे में, राइट? देन थर्ड जो रहेगा, वी कैन से सैलरी, it will be it will basically go into the salary array for all. लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ पे आप लोगों ने आपने लेट्स से 3 ही वेरिएबल्स यूज किए, बट वो सेपरेट है, दिस इज इन सेपरेट स्पेस, ये अलग स्पेस में है, ये अलग स्पेस में है। आपने इसमें अगर चेंज किया तो इसका और इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, राइट? दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग। तो अगर किसी ने, और अगर हम ये समझ, ये अगर हम आई, राइट, इंडेक्स से अगर रिलेट करते हैं, इफ यू आर रिलेटिंग इट विथ व्हाट, इंडेक्स, और समहाउ एचआर को बढ़ाना था सैलरी 74th नंबर एम्प्लॉय का, करेक्ट? एचआर को बढ़ाना था सैलरी 74th नंबर एम्प्लॉय का, और जो 70th नंबर एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय, राइट, ही बेसिकली वेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने क्या हुआ कि 70th नंबर जो एम्प्लॉय था उसने कंपनी छोड़ दिया। अभी 74th नंबर एम्प्लॉय का अगर सैलरी बढ़ाना था, तो हो सकता है यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, जस्ट अब इंडेक्स से अगर बोल रहे कि नहीं, सैलरी ऑफ 73rd, लाइक, राइट, सैलरी ऑफ 73rd मतलब क्या, 74th एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी। तो अगर एक एम्प्लॉय ने छोड़ा तो बाकी के एम्प्लॉयज का अगर डेटा आगे 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 सरक गया, तो जब आप 74th एम्प्लॉय का सैलरी चेंज करने जाओगे, आप एक्चुअली चेंज कर दोगे सैलरी 75th एम्प्लॉय का, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए सोल्यूशन एक ही है कि आपके पास एक सिंगल ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जहां पे आप हर एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह पे रख सको, राइट? सो वहां पे आता है स्ट्रक्चर, करेक्ट? देयर कम्स अ स्ट्रक्चर। सो हम स्ट्रक्चर एक डिफाइन करेंगे, लेट्स से एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, लेट्स से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करके ऐसे। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होगा? सो एम्प्लॉय के अंदर होगा नाम, it will be a name of the employee, correct? Let's say of 10 size. Then there will be a employee id, that is int। लेकिन क्या होता है, अनसाइंड इंट होता है, राइट?
एम्प्लॉय आईडी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेट्स से अनसाइंड इंट, देन उसका सैलरी, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अनसाइंड इंट सैलरी, करेक्ट। अभी ये हो गया एक डेटा स्ट्रक्चर। जब हम इसका एरे डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास 1.5 लाख पी अगर एम्प्लॉयज है, अगर आपने 1.5 लाख एम्प्लॉयज का एरे अगर डिफाइन कर दिया, एम्प्लॉय, राइट, ऑर्ग ईएमपीज, लेट्स से आपने 1 लाख का एक एरे डिफाइन कर दिया, राइट, तो आपके पास पता है, आपको पता है कि ऑर्ग ईएमपीज का जीरोथ जो एम्प्लॉय है, उसको आप चेक कर सकते हो कि नहीं इसका नाम क्या है, राइट, एंड देन अकॉर्डिंगली परफॉर्म द ऑपरेशन। सो एम्प्लॉय जीरो जो रहेगा उसका पूरा डेटा इसी के अंदर रहेगा, ना कि scattered, right? So that's how the structures are there, right? Now let's see how to declare it. Let's take this example only. तो हम को अभी एक एम्प्लॉय नाम का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर हमको स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिफाइन करना है, तो हम स्ट्रक्ट करके जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं। सो स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर डेटा टाइप का नाम, एंड देन इनसाइड करली ब्रेसेस, ओके, हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि एम्प्लॉय कैसे कैसे है, राइट, सो इट इट शुड एंड विथ व्हाट, सेमी कॉलन, ओके। नाउ एम्प्लॉय के कौन से प्रॉपर्टीज रहने वाले, 3 प्रॉपर्टीज, कैर नेम, दिस अनसाइंड, अनसाइंड, यहाँ पे अनसाइंड का स्पेलिंग अलग है, राइट, सो यस, सो दिस इज, अभी हमने कंपाइलर को बता दिया कि भाई एम्प्लॉय करके एक डेटा डेटा स्ट्रक्चर है या फिर डेटा टाइप है, राइट, कि जिसके अंदर हर एक, अगर आपने एम्प्लॉय नाम का अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उसके लिए मेमोरी में 10 and 4 18 बाइट्स क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट द साइज ऑफ इट, प्रिंट एफ साइज ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय is, so we will use the size of operator, right, and struct employee, से देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड हमको यूज करना पड़ता है हर बार, बिकॉज दिस इज यूजर डिफाइंड। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्ट नहीं दोगे तो इट विल नॉट बेसिकली टेक इट, या, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रन इट, व्हेन आई रन इट इट विल आस्क मी फॉर, से देखिए व्हाट एग्जैक्टली इट हैज साइज ऑफ स्ट्रक्ट इज व्हाट 20, लेकिन 20 तो नहीं आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था, राइट, नेम इज 10, एम्प्लॉय आईडी इज 4, salary is 4 byte, so q20, I'll tell you this that thing, right, it basically has one hidden variable, we'll come to that, yeah. So that's what it is, how to declare and how to calculate the size of the employee. Now, so we know the int float kaise hota hai, right, so this int float, similarly अभी हमारे पास क्या है, struct employee करके एक अलग डेटा टाइप है, करेक्ट। तो अभी हमको अगर int के अगर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, हाउ डू वी डू, int x y z ऐसे करते, राइट। फ्लोट का अगर कुछ करना है तो लेट्स से t, सिमिलरली अगर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डिफाइन करना है तो हाउ डू वी डू दैट, करेक्ट, लेट्स से emp1, राइट, सो emp1, अभी emp1 के अंदर क्या क्या रहेगा, emp1 के अंदर नेम रहेगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, सैलरी रहेगी, राइट, सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन इट। तो आपको अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो, लेट्स मे बी कम टू दिस आफ्टरवर्ड्स, बट लेट्स लेट्स डिफाइन इट हियर। सो अभी सिनेरियो कुछ इस तरीके से लेते हैं, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू define a employee type variable, एक employee type variable define करते हैं, and then we will basically, instead of accepting the data from user, right, we will first assign that. So define employee type variable, assign some initial value,
and print the data. Let's try this one. Yeah. So हमारे पास एक एम्प्लॉय लेट से, सो वी विल डिफाइन दैट. सो कैसे डिफाइन करना है, जैसे हम यहाँ पे इंट लिखते हैं उसी तरह से वी नीड टू राइट स्ट्रक्ट एंड देन एम्प्लॉय. ओके, नाउ व्हेन इज अ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, देन द नेम, the variable name, right? Let's say employee1, emp1, correct, not array, we are saying in emp1. अब emp1 को हम इनिशियलाइज कर देते हैं. नाउ हाउ डू वी इनिशियलाइज दैट? सो employee1 का नाम है लेट्स से राकेश, राइट. उसका एम्प्लॉय आईडी है लेट्स से 2003. Then the salary maybe he has, suppose that let's say 3,40,000. करेक्ट. सो ये हो गया, एक एम्प्लॉय है और ये उस एम्प्लॉय का डेटा है. उस एम्प्लॉय का नाम है राकेश. यहाँ पे हमने नाम क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट. जिस तरह से यहाँ से हमने जिस सीक्वेंस में डिफाइन किया गया है उसी सीक्वेंस में वो कंसीडर करेगा. फर्स्ट मींस नेम, सेकंड मींस एम्प्लॉय आईडी, थर्ड मींस सैलरी. ओके, सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. हाउ टू प्रिंट इट नाउ? सी, अगर आपको प्रिंट करना है डेटा तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? एम्प्लॉय डेटा इज, इट्स अच्छे से प्रिंट करने की कोशिश करते, सो विल प्रिंट इट ऑन न्यू लाइन, राइट. प्रिंट एफ नेम. नेम क्या है? परसेंट एस, राइट. वाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग. अगर आप यहाँ पे देखोगे परसेंट एस, लेकिन नेम किसके अंदर है? एम्प्लॉय के अंदर है, राइट. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय? इट्स emp1. सो एक्सेस कैसे करना है? इस तरह से emp1 डॉट डॉट, मतलब क्या? ये एक्सेस स्पेसिफायर है कि पर्टिकुलर उसके अंदर जाके आपको क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है. अभी अगर मैंने एम्प्लॉय 1 डॉट करके देखा तो आपको यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है. एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, कैरेक्टर और सैलरी है. आपको क्या प्रिंट करना है? सो एम्प्लॉय. सो रिमेंबर, अगर पॉइंटर नहीं है तो आपको डॉट यूज करना है, अगर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर से कुछ डेटा निकालना चाहते हो तो. करेक्ट. नाउ सेम थिंग अभी हम एक काम करेंगे. व्हाट डू वी डू? वी विल जस्ट मे बी प्रिंट हियर एम्प्लॉय आईडी. करेक्ट. अब एम्प्लॉय आईडी, it will be what? Dot employee ID. Correct. Then what we will print? We'll try to print its salary. Salary. Salary will be what? The third one. Now tell me, is it correct? मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम करेक्ट है. क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज देखो हम यहाँ पे परसेंट यस यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट वाज नेम इज अ स्ट्रिंग, लेकिन एम्प्लॉय आईडी क्या है? इट्स अनसाइंड इंटीजर, राइट. सो यू शुड बेसिकली यूज इधर यू और डी. So this is going to be what? U. So when you print it like this, it will run. Let's see what exactly the answer it gives. See? So employee data is, name is what? Rakesh, employee ID is 2003, salary is what? 3,40,000. Correct. So this is how आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट का नाम वो लिखो. दैट इज दिस बेसिकली इज अ डेटा टाइप. इसको बोलते हैं पूरा डेटा टाइप स्ट्रक्चर का. इसको बोलेंगे वेरिएबल, और उस वेरिएबल का ये हो गया पूरा वैल्यू. और इस वेरिएबल के अंदर का ये जो डेटा है, हर एक फील्ड बोलते हैं इसको. इसको अगर हमको आपको एक्सेस करना है तो यूजिंग डॉट करना है. एम्प्लॉय 1 का नाम, एम्प्लॉय 1 का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय 1 का सैलरी. अंडरस्टूड? नाउ ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन, राइट. अगर हमको इनिशियलाइज नहीं करना है, हमें यूजर को बोलना है कि भाई यूजर आप इंटर करो, फिर हम आपको उस डेटा को प्रोसेस करके देंगे. तो लेट्स मे बी आस्क यूजर टू इंटर. करेक्ट. So how do we ask user to enter? Printf, right? Enter the employee data. Employee का डेटा इंटर करो, ऐसे हम एक मैसेज देंगे उसको, राइट. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन.
फिर वी विल आस्क दैट पर्सन टू से कि भाई क्या इंटर करना है, अभी नेम इंटर करो। तो नाम के लिए एक अलग से मैसेज देंगे। जब नाम इंटर के लिए मैसेज देंगे तो हम, अगर यूजर से हम नाउ विल आस्क फॉर द नेम, तो यूजर अगर नेम इंटर करेगा तो वो किसमें, यूजिंग परसेंट एस हम लेंगे। लेकिन हमको कहाँ पे देना है उसको, emp1 के नेम में जाना है, राइट। सो दिस विल गो टू द emp नेम। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट रहेगा प्रिंट एफ, वी विल आस्क भाई इंटर एम्प्लॉय आईडी। करेक्ट, एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी इंटर करो। तो एम्प्लॉय आईडी अगर इंटर करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी कैसे लेंगे हम लोग, परसेंट यू या परसेंट डी से, राइट। सो व्हाट विल बी दैट, emp1 dot employee id, we need to give the address of operator, correct, as we are dealing with the scanf। थर्ड रहेगा printf, what exactly we have third is the salary, salary इंटर करो। तो सैलरी अगर इंटर करनी है तो सिमिलरली scanf होगा, then inside the scanf again it will be percent u and address of operator emp1 dot उसका सैलरी। ये हो गया, यूजर ने इंटर कर दिया। अभी जैसे यूजर ने एंटर किया हम उसको प्रिंट कर देंगे। लेट्स से हम 2-3 लाइन एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमको आउटपुट अच्छे से दिखे, करेक्ट। सो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर को एक मैसेज दे रहे कि भाई आपको, इधर यूजर को या फिर अब आप समझ लीजिए कि आपकी कंपनी का कोई एचआर है, एचआर इस डेटा को इंटर करता है, राइट, सिस्टम में। तो एचआर ये सब कुछ डेटा इंटर कर रहा है, जिसके पास पूरा डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है और नाम भी है। तो अगर वो 10 से लेट से 10 या 15 लोग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 10 और 15 लोगों का अगर वो डेटा इंटर करेगा एचआर, राइट, तो एचआर को एक ऐसा टूल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो एचआर को पूछे क्या इंटर करना है, एचआर फिर उस चीजों को इंटर करेगा एंड देन उस सिस्टम में चला जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट इट, वो आ गया अब यहाँ से इंटर द एम्प्लॉय डेटा। सो फर्स्ट इज नेम, लेट्स से, राइट, राकेश, एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 2007, salary let's say 10,30,000। ये देखो, सो ये वाला यूजर ने इंटर किया हुआ डेटा, और अभी यहाँ पे यूजर ने, और वो डेटा हमने प्रोसेस किया। अभी आपने एक देखा होगा यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ यूज किया है स्कैनएप में, यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ यूज किया, यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, सी इट्स अ स्ट्रिंग। ये स्टैटिक स्ट्रिंग एरे बोलते हैं इसको। यू नेम इज बेसिकली एन एरे, ओके। सो जो फर्स्ट, ये नेम एक्चुअली एड्रेस होल्ड करता है पूरे इसका। अगर हम नेम जीरो बोलते थे तो नेम जीरो इज समथिंग एल्स, नेम जीरो मतलब उसके नाम में से फर्स्ट कैरेक्टर, ओके। सो दैट्स हाउ इट। सो ये हो गया वन पर्टिकुलर इंप्लॉय का डेटा। लेकिन लेट्स से अभी 5 इंप्लॉयज है मेरे पास, राइट। सो अगर 5 इंप्लॉयज है मेरे पास तो उसका डेटा मैं कैसे लूंगा, करेक्ट। सो लेट्स से ईएमपीज, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उसका एक एरे डिफाइन कर देंगे। अभी इसका मतलब क्या हो गया, ईएमपीज करके क्या है, एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, स्ट्रक्ट एरे का। सो ईएमपी जीरो में क्या रहेगा, ईएमपीएस जीरो में नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। ईएमपीएस वन में भी नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। सो हर एक एरे एलिमेंट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। अभी हमको अगर यूजर से डेटा लेना तो हम कैसे लेंगे, ऑब्वियस है हम फॉर लूप से लेंगे, क्योंकि 5 बार तो हम सेपरेटली ये चीजें लिखेंगे नहीं। सो लेट्स से हमने ले लिया इटरेटर जो रहेगा आई, राइट। सो फॉर I is equal to 0, I is less than let's say 5 and I plus plus, करेक्ट। अभी हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी वो डेटा रेडी है, करेक्ट। सो हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं जो हम यूजर से ले रहे हैं, करेक्ट। सो हम यहाँ पे यूजर को बता रहे कि इंटर द डेटा, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर द परसेंट डीथ एम्प्लॉय डेटा,
परसेंटेज मतलब उसको पता लगेगा कि भाई कौन से नंबर के एलिमेंट एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना है। जब हम आई जीरो रहेगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा एंटर करो, राइट। सेकंड रहेगा तो आई इज इक्वल टू वन रहेगा तो सेकंड एलिमेंट, ऐसे उस तरह से, राइट। सो इट विल बेसिकली गिव यू द प्रॉपर मैसेज टू यूजर या फिर एचआर, राइट, जो whoever ये टूल जो भी यूज कर रहा है उसको, राइट। लेट्स से परसेंट डी नंबर एम्प्लॉय डेटा, ओके। नाउ लेकिन हम यहाँ पे ईएमपी वन यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या है अभी ईएमपीज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईएमपीज होना चाहिए। लेकिन ईएमपीज में हम इट्स एन एरे, सो क्या रहेगा आई, अंडरस्टूड। अगर आपने एरेज आपको पता नहीं है तो आप एक काम कीजिए, एरेज एक बार देख लीजिएगा, ओके। या नाउ अभी हमको इसको प्रिंट भी करना है, राइट। सो हाउ डू वी एक्चुअली प्रिंट इट। सो सेम रहेगा, फॉर लूप ही रहेगा, राइट। फॉर लूप प्रिंट करने के लिए ये फॉर लूप हो गया एंड। अगर ये फॉर लूप एंड हो गया तो इसके अंदर ये जो प्रिंटफ वाला जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेट्स यूज दैट, नॉट द स्कैनफ वन जो नेक्स्ट है, राइट। इसी डेटा को हम यूज कर लेते हैं, करेक्ट। अभी ये हो गया प्रिंट। नीचे का जो है उसको हम कमेंट कर देंगे, बिकॉज अदरवाइज ए भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमको मैसेज प्रॉपरली फॉर्मेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल जस्ट मे बी गिव अ रॉन्ग फॉर्मेट डेटा। तो ईएमपीज आई, राइट, जो हम लोग यहाँ पे ईएमपी वन लिया हुआ है, इट शुड बी व्हाट ईएमपी आई, इट शुड बी व्हाट ईएमपी आई, इट शुड बी व्हाट ईएमपी आई। तो ये जो है हर एक के लिए हमको इम्प्लॉय डेटा नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इम्प्लॉय डेटा ऊपर लिख लेते हैं। एक ही मैसेज देंगे कि द डेट एम्प्लॉयज डेटा, राइट, इज। तो व्हाट डू वी डू वी में भी फॉर्मेट, लेट्स से फॉर्मेट बाद में कर देंगे, और एक बार ये पहले इस तरह से प्रिंट करके देखते हैं कैसे होता है, राइट। सो पहले हम अभी इस प्रोग्राम में हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने एक एरे डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, जिसमें 5 एम्प्लॉयज का डेटा रहेगा, राइट। इसी तरीके से वो लाख एम्प्लॉयज का भी डेटा रह सकता है। फिर वो डेटा इंटर करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर लूप लगा दिया जो यूजर इंटर करेगा। सो जीरो के लिए अगर आई जीरो रहा तो क्या मैसेज आएगा, इंटर वन नंबर वन एलिमेंट, नंबर वन, लेट्स से, राइट, नंबर परसेंट डी बाद में लिख देते हैं, अच्छा दिखेगा। इंटर द नंबर वन एलिमेंट, नंबर वन एम्प्लॉय डेटा, राइट, क्योंकि वन। तो फिर उसका नाम इंटर करो, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। देन आई वन हो जाएगा, आई प्लस प्लस, वन इज लेस देन फाइव। देन इंटर द नंबर वन, नंबर टू एम्प्लॉय डेटा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आई प्लस वन ले रहे हैं, तो आई अगर वन है तो यहाँ पे टू आएगा। देन सेकंड एम्प्लॉय डेटा, थर्ड एम्प्लॉय, राइट, क्योंकि यहाँ पे आई टू रहेगा। ना जैसे यूजर ने पूरा डेटा एंटर कर दिया, हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। सो सेम, लेकिन ये प्रिंट है बाहर है, फॉर लूप के बाहर, मतलब एक ही बार प्रिंट होगा। ऊपर क्या प्रिंट होगा, 3 न्यू लाइंस और एक टैब देके एम्प्लॉयज डेटा इज, फिर वो नए इसमें आ जाएगा। एंड देन व्हाट इट विल बेसिकली प्रिंट, आई इज इक्वल टू जीरो, नेम क्या है, एम्प्लॉय आई इज नेम, राइट, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। चलो इसको हम प्रिंट करके रन करके देखते हैं। सो व्हेन वी रन दिस, ये इस तरह से आ गया। मैं हमको पहले एम्प्लॉय का डेटा देना है। सी देखिए आप प्रोग्राम कितना अच्छा लिखते हैं, उससे भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जो आपका प्रोग्राम यूज करने वाला है उसको आप कितने अच्छे से यूजर एक्सपीरियंस देते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे यूजर इंटर द नंबर वन एम्प्लॉय डेटा नहीं देता है, जस्ट बोलते हैं इंटर द एम्प्लॉय डेटा, तो कितनी बार इसको इंटर करना है उसको पता नहीं लगता, राइट। सो अभी यहाँ पे देखिए, अभी लेट्स से राकेश, उसका एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 15, सैलरी उसका 3,40,000, सेकंड एम्प्लॉय लेट्स से अथर्व, राइट, उसका एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 17, राइट, सैलरीज लेट्स से 4 lakh, right, and the third employee is let's say
Nikin, okay, the employee ID is let's say 24 and the salary is 5,60,000. Right, the fourth employee is let's say Sheetal. Right, employee ID is maybe let's say 45. Salary is 4,50,000. Right. Then the fifth employee is assume it's Hridaya. Employee ID is maybe 56, whereas salary is 5 lakh. करेक्ट. तो ये हो गया 5 एम्प्लॉय का डेटा. अभी देखो प्रिंट करते वक्त उसने कैसे प्रिंट किया. एम्प्लॉय डेटा इज नेम राकेश, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, नेम. राइट, इस तरह डेटा पूरा अच्छे से प्रिंट किया, लेकिन दिखते वक्त प्रिंट में अच्छे से दिख नहीं रहा है. करेक्ट. नाउ लेट्स मे बी ट्राई टू फॉर्मेट दिस आउटपुट इट अ प्रॉपर वे. करेक्ट. अभी हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ न्यू लाइन. फर्स्ट टैब के बाद रहेगा उसका इंडेक्स. राइट. देन देयर विल बी अ टैब, देन नेम टैब. उसके बाद हम उसका एम्प्लॉय आईडी रखेंगे, ईएमपी आईडी. राइट. और मे बी एम्प्लॉय ईएमपी आईडी. लेट्स, उसके बाद डबल टैब एंड देन लेट्स से उसका सैलरी रखते हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. या ओके. इस तरीके से फिर अभी हम क्या करेंगे, वी रियली सो हियर हमको उसका इंडेक्स भी प्रिंट करना है ना. सो न्यू लाइन टैब. राइट. टैब के बाद रहेगा परसेंट डी, विच विल बेसिकली गिव यू दैट i+1, मतलब इंडेक्स. देन हमको न्यू लाइन नहीं चाहिए. करेक्ट. उसके बाद एक टैब के बाद नाम चाहिए, तो हम एक टैब के बाद नाम ले लेंगे. फिर डबल टैब के बाद हमको चाहिए एम्प्लॉय आईडी. राइट. सो वी आल्सो डोंट वांट द नेम नाउ, हम डायरेक्टली नाम प्रिंट करेंगे. तो हमको एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, हम एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करेंगे. फिर देयर इज अ डबल टैब. राइट. यहाँ पे भी डबल टैब है, नेम के बाद दो टैब, आईडी के बाद दो टैब है. देयर इज नो न्यू लाइन बट वी नीड अ सैलरी, सो वी डोंट वांट दैट सैलरी नेम. सो देखिए अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं. सो व्हाट इट विल बी. अभी इंस्टेड ऑफ आस्किंग यूजर टू इंटर द डेटा, राइट, लेट्स इनिशियलाइज इट. यूजर से लेने की बजाय हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देते हैं. अभी इसको इनिशियलाइज कैसे करना है. करेक्ट. लेट्स ट्राई टू इनिशियलाइज इट. सो फर्स्ट डेटा वुड बी दिस वन. राइट. फिर सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट. ओके. देन let me just copy that part 5 times. Second element, third, fourth and fifth. राकेश की जगह पे लेते हैं अथर्व, निकिन. राइट. देन शीतल, देन हृदया. राइट. लेट्स से आईडी जो हम लोगों ने एंटर किए थे वो थे 15, 17, 45, 24, 56. सैलरीज हमने एंटर किए थे 4 lakhs, then 560, then we entered 450, then we entered 5. राइट. नाउ ये हो गया इनिशियलाइज. इसका मतलब क्या है कि इम्प्लॉयज के अंदर 5 एम्प्लॉयज है. फर्स्ट एम्प्लॉय है राकेश, जिसका एम्प्लॉय आईडी 15 एंड सैलरी है 3,40,000. एंड सिमिलरली सेकंड एम्प्लॉय अथर्व, निकिन, शीतल. राइट. एंड देन हृदय. अभी लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. हाउ डज इट प्रिंट.
Okay, what it is giving? It is saying expected constructor. This one. Oh, this is not correct. We forgot to delete this. Syntax error. Yeah, another syntax error. See, the troubleshooting is also the important part here. Okay, so you cannot maybe see now the output how it looks like. Does it sound good now? आपको देखने से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है? तो इस तरीके से आप आपके डेटा के साथ किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इफ यू सी फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एम्प्लॉय, नेम्स हो गए, एम्प्लॉय आईडीज हो गए, सैलरी हो गए. तो इस तरह से आपको हर एक स्ट्रक्चर के साथ आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो. नाउ let's see how we can deal with so if we don't want to maybe declare the variables here, right, and then we if we want to declare the variables maybe at upfront. Okay, so where what is the other place where we can declare uh, the structure variable? तो आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो. Let's say emp1, okay, emp2, and then let's say star emp3. Now what exactly it is? emp1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये थ्री डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है. emp2 एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये थ्री एट्रीब्यूट्स है. एंड emp3 एक पॉइंटर है जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल का एड्रेस क्या करेगा, होल्ड करेगा. एम्प्लॉय 3 विल पॉइंट टू अ वेरिएबल व्हिच बेसिकली इज ऑफ टाइप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय. अभी let's try to maybe work with this will also cover one more point what we want to cover, right? Ki how do we deal with the pointers and the structures? Now let's maybe have it like this, right? We'll ask user to enter maybe employee 1 and employee 2 details. Yeah, now let's try it that way. Yeah, let's maybe print, right? Print employee, or maybe enter employee 1 data, right? So when employee enter 1 data, we will just give all this actually the stuff what we have it here. Correct. But now we are saying them to enter the employee 1 data. What exactly it means, right? Employee 1, तो यहाँ पे EMPs नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा employee 1. यहाँ पे भी आएगा employee 1 का employee ID, यहाँ पे आएगा employee 1 का salary. Correct. Then we are saying enter the employee 2 data, right? Enter the employee 2 data. तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा employee 2, employee 2, employee 2. Okay. Now employee 3 क्या है? employee 3 is what? Is a pointer. तो इसके अंदर क्या रहेगा? एड्रेस. एड्रेस ऑफ राइट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का. स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के कितने वेरिएबल है अपने पास? emp1 एंड emp2. सो लेट्स से इसके अंदर मैंने वेरिएबल डाल दिया है एड्रेस ऑफ एड्रेस डाल दिया emp1 का. सो आई विल चेक नाउ कि emp3 के अंदर है क्या. if emp3 is equal to address of emp1, then printf emp employee 3 is pointing to employee 1. करेक्ट. अगर इसका एड्रेस दोनों का सेम नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट एम्प्लॉय 2 को कर रहा है. इसमें एल एल भी लगा सकते हैं. करेक्ट. सो लेट्स मे बी ट्राई टू डील विद दैट. तो एल्स इफ अगर 1 को नहीं पॉइंट कर रहा तो इज इट पॉइंटिंग टू 2? अगर यस, देन दिस वे. इफ नॉट, this should be based just a else part, right?
एम्प्लॉय 1 को भी नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय 2 को भी नहीं कर रहा है, मतलब क्या, एम्प्लॉय 3 इज नॉट पॉइंटिंग टू, एम्प्लॉय 3 इज neither pointing to employee 1 nor employee 2, right? Now let's try to run it. Obvious यहाँ पे भी क्या है, see why I'm having here address of employee 1, because employee 3 के अंदर के contents हमको चाहिए, okay? And then we will actually try to print it here. Print name is what, percent %s. So what it will be, emp3 name. See how do we do that? अभी जब पॉइंटर नहीं था तो यहाँ पे डॉट यूज कर रहे थे हम लोग, अभी पॉइंटर है तो क्या, एरो यूज करना है. रिमेंबर दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सेस द एलिमेंट्स इफ देयर इज अ पॉइंटर, right? That's how you should basically deal with the pointers when you deal with pointers and the structures. So employee number, so यहाँ पे क्या आएगा, employee 3 का employee ID, then its salary, okay, ID rather, its good name, it is not percent %d percent %s, it is percent %u. Now salary is again percent %u, and then it is going to be like salary, yeah. And the same thing we will print it here when it is pointing to employee 2, okay. So let's now try to run it. Yeah. So it is saying employee intra data 1, employee 1 data Rakesh, employee ID is, let's say, 897, salary is 4,56,000, correct, whereas employee 2 is Anil, employee ID is 345, whereas salary is, let's say, 8,76,000. So see, right now employee 3 is what, pointing to employee 1, correct. But what if it is pointing to employee 2? So will that give the employee 2 details, right? So let's maybe change this to employee 2 and rerun it. So when we rerun it with the employee 2, it will basically have it like this. First employee data, let's say Rakesh, 897, 4,56,000, right? Then employee is Anil, employee ID is 456, and salary is, let's say, 870. Now see, employee 3 is pointing to what? Another one, right? Second one. Similarly, if you do not initialize this employee 3 to anyone, it will come to else and it will say it is not, either neither pointing to 1 or not. अभी दोनों जगह भी employee 1 आ रहा था, because हमने printf पे यहाँ पे employee 1 लिखा है, यहाँ पे भी printer in employee पे मतलब printf पे same लिखा है. अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो it will basically say enter the employee 2 details, right? So that's how basically we use the pointers with the structure. Now let's look at this functions and the pointers. Yes, so functions, structures and the pointers. So अभी अगर आपको structures functions को as input argument पास करना है तो आप कैसे करोगे, right? और अगर आपको structure pointer पास करना है तो कैसे करोगे? So let's now look at this. Okay, yeah. So अभी मैंने क्या किया है, I just maybe declared a structure here, employee, right, which has the name, employee ID, salary same. मैंने एक फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे. आई एम राइटिंग अ फंक्शन हियर, दिस वन, विच रिटर्न्स नथिंग. क्या करता है, इट जस्ट प्रिंट्स द एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करता है. इनपुट आर्गुमेंट इट टेक्स ऑफ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट. अगर हमने कुछ कोई और फंक्शन यूज करते थे हम लोग, तो हम इनपुट मिलते इंट एक्स, इंट वाई, इफ यू राइट एडिशन फंक्शन, करेक्ट.
सो व्हाट डज दैट मीन, एडिशन एक फंक्शन है जो इंटीजर x लेता है और इंटीजर y एज इनपुट लेता है, आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे प्रिंट एम्प्लॉय डेटा क्या लेता है, एक ईएमपी करके एक वेरिएबल है जो एम्प्लॉय इनपुट आर्गुमेंट लेगा, राइट। बट व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट, टाइप क्या है उसका, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय टाइप। सो ईएमपी में ये पूरे सारे वैल्यूज आएंगे जो भी हम वहां से पास करेंगे। देन वी आर जस्ट प्रिंटिंग नेम, नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, राइट। अगर इंस्टेड ऑफ एक सिंपल वेरिएबल अगर आप पॉइंटर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जस्ट ईएमपी की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टार ईएमपी हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे नॉट, इट वाज नॉट अ पॉइंटर, इट वाज एक्चुअल वेरिएबल, यहाँ पे हम लोगों ने डॉट यूज किया था। लेकिन यहाँ पे पॉइंटर है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरो, राइट, दैट इज ए डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, प्रिंट प्रिंट एम्प्लॉय डेटा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल इनपुट लेता है एज आर्गुमेंट, प्रिंट एम्प्लॉय डेटा पी करके है जो पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर वेरिएबल लेता है एज इनपुट, एंड देन इट प्रिंट्स दैट डेटा। नाउ लेट्स मे बी जस्ट, वी डोंट वांट दिस आई राइट नाउ। ओके, अभी यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय 1 लिया हुआ है विच एज राकेश, दिस एम्प्लॉय 2 लिया हुआ है as this, right, and then employee 3 is a pointer which is basically pointing to what, employee 1। तो अभी हम लोग we are just invoking this function print employee data employee 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, from this line it will go to this line, right। फिर यहाँ पे एग्जिक मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, then it will come back, it will check next thing employee data employee 2 को लेके जाएगा। अभी पहले employee 1 employee EMP में कॉपी किया था, फिर अभी EMP में employee 2 रहेगा, फिर ये सभी प्रोसेस होगा। Then the next thing will be what, employee data p emp3। emp3 क्या है, पॉइंटर टाइप है, तो वो चेक करेगा इज इट अ पॉइंटर टाइप, यस, तो वो यहाँ पे आके बराबर लेगा। लेकिन अगर आप ये वाला फंक्शन इससे अगर एक्सेस करने जाओगे तो इट विल गिव एन एरर बिकॉज एम्प्लॉय 2 का डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप अलग है। ये पॉइंटर टू स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप है, whereas this is actual एम्प्लॉय का डेटा है, राइट। लेट्स मे बी ट्राई टू एग्जीक्यूट इट नाउ। So when we execute it, it will basically give this data. See, so पहले जो दो आउटपुट्स है वो पहले वाले फंक्शंस है प्रिंट एम्प्लॉय डेटा से, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, यूजिंग प्रिंट एम्प्लॉय डेटा पी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपने प्रिंट एम्प्लॉय डेटा ही ट्राई किया एम्प्लॉय 3 से, तो वो क्या टाइप का एरर देगा, ऑब्वियसली मिसमैच देगा। सी, कुड नॉट कन्वर्ट द emp3 फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार टू एम्प्लॉय, करेक्ट। एम्प्लॉय 3 क्या है, एम्प्लॉय स्टार है, लेकिन एम्प्लॉय डेटा को क्या चाहिए, एम्प्लॉय ही चाहिए खाली, इट इज नॉट समथिंग स्टार it needed, right? So it should be what, let's copy। So this is how you can basically pass structure as a function argument, or you can pass structure pointer as a function argument। Okay, now let's see how we can pass structure array to a function। अगर मुझे फंक्शन को स्ट्रक्चर एरे पास करना है, एक इंप्लॉय का डेटा मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे पूरे के पूरे इंप्लॉयज का डेटा प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, राइट, जो हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने लिख के रखा था, उसी डेटा को लेते हैं, 5 एम्प्लॉयज का डेटा, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए यहाँ पे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द डेटा वी हैव। इन तीनों को थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, करेक्ट। अभी व्हाट इज हैपनिंग हियर, ईएमपीस करके एक एरे है 5 एम्प्लॉयज का, और उसके अंदर ये 5 एम्प्लॉयज का डेटा है। अभी हमको प्रिंट एम्प्लॉय डेटा करके जो फंक्शन है वो यूज करना है इस ईएमपीस को प्रिंट करने के लिए। अभी हम फिर व्हाट वी विल पास एज आर्गुमेंट ईएमपीस, लेकिन ईएमपीस क्या है, एरे है, राइट। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा टू एक्सेप्ट एरे। नाउ दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे क्या एक सिंगल एरे यूज कर रहा है, एक सिंगल एलिमेंट ले रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू चेंज इट लाइक सो दैट नाउ ये फंक्शन इज गोइंग टू एक्सेप्ट एन एरे ऑफ टाइप दिस, जो भी वहां से पास होगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा। नाउ अगर हमको उसको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यूज फॉर लूप, बिकॉज हमको
5 लोगों का डेटा प्रिंट करना है, करेक्ट? सो इट विल बी राइट, लेट्स मे बी यूज द सेम फॉर लूप व्हाट वी हैड इट, राइट? जो थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर लूप था, कहाँ पे था फॉर्मेटेड फॉर लूप? ये वाला इंडेक्स वाला लिया था हमने, करेक्ट? सो उसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो आई एम जस्ट मे बी ट्राइंग टू कॉपी इट हियर। ओके, इंडेक्स नेम एम्प्लॉय आईडी सैलरी। ओके, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ईएमपी यूज किया है और यहाँ पे ईएमपी, तो यहाँ पे आएगा ईएमपी, 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 करेक्ट? तो अभी हम लोगों ने एक ही बार, पहली बार हम लोगों ने हर एक एम्प्लॉय के लिए हम एक बार कॉल कर रहे थे, अभी हम सभी एम्प्लॉयज के लिए इकट्ठा कॉल करेंगे इस फंक्शन को। तो ये किस तरह से प्रिंट होगा? सी, इट्स गोइंग टू गिव मी लाइक दिस, इज इट? सो व्हाट एग्जैक्टली जो ईएमपीस करके डेटा है वो पूरा का पूरा इस एरे में आ रहा है। देन यूजिंग दिस एरे हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय आई डॉट नेम, राइट? अगर मैं इसको पॉइंटर बना दूं तो, नाउ लेट्स से आई वांट दिस फंक्शन टू बी मॉडिफाइड और चेंज्ड टू एक्सेप्ट ईएमपीज। ये वाला जो डेटा है, अभी ये वाला डेटा मुझे इस फंक्शन से लेना है, प्रिंट करना है। लेकिन ईएमपीज क्या है? इट्स अ, जैसे मैंने बोला था, राइट, जब हम एरे, स्टैटिक एरे लेते हैं, स्टैटिक एरे इज आल्सो पॉइंटर। ये क्या होता है? एक पॉइंटर होता है, करेक्ट? अगर ये पॉइंटर है तो हम इसको इस टाइप के पॉइंटर में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट? स्ट्रक्ट स्टार ईएमपी। अभी नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट्स इजी, राइट? सो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रिंट इट लाइक द सेम वे यूजिंग द फॉर लूप ओनली। लेकिन यहाँ पे पॉइंटर होने की वजह से हम क्या करेंगे, वी विल नॉट हैव दिस, right? We will not have this will basically be a array, sorry, arrow, right, to access it. So हम तीनों जगह पे इसको चेंज कर देते हैं। ओके, अभी क्या हो रहा है कि इट विल कम टू प्रिंट एम्प्लॉय डेटा पी, वो एक पॉइंटर लेके आ जाएगा। पॉइंटर मतलब क्या? एड्रेस, शुरुआत का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो एरे है उसका, राइट? ये इस तरह से जो एरे है, ईएमपी एस करके ये एरे, राइट? सो यहाँ पे जीरो एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एम्प्लॉयज है ईएमपीस के अंदर, करेक्ट? लेकिन अभी जो ईएमपी है, ईएमपी किसको पॉइंट कर रहा है? ईएमपी इज पॉइंटिंग टू दिस। तो ईएमपी क्या करेगा? ईएमपी, सिंस ईएमपी इज पॉइंटिंग टू जीरोथ एलिमेंट, इट विल से जीरोथ एलिमेंट प्रिंट कर देगा, जीरोथ एलिमेंट प्रिंट का आईडी प्रिंट करेगा, जीरोथ एलिमेंट का सैलरी प्रिंट करेगा। फिर से दूसरी बार जीरोथ एलिमेंट का ही प्रिंट करेगा, तीसरी बार जीरोथ एलिमेंट का ही प्रिंट करेगा। देखिए, लेट्स से नाउ हाउ डज इट प्रिंट, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला वाला जो था, फर्स्ट हम लोगों ने विदाउट पॉइंटर वाला लिया है तो उसने बराबर सब कुछ अच्छे से प्रिंट कर दिया। लेकिन सेकंड वाला हम विद पॉइंटर ले रहे हैं तो इट इज ओनली पॉइंटिंग द फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल्स 5 टाइम्स। तो हमने क्या गलती की यहाँ पे? सो हम लोगों ने इस पॉइंटर को बढ़ाना चाहिए था, करेक्ट? सो वी शुड बेसिकली सी ईएमपी प्लस प्लस। अभी क्या करेगा वो? पहला प्रिंट करेगा, बाद में ईएमपी चला जाएगा वन पे, फर्स्ट प्रिंट करेगा ईएमपी चला जाएगा आगे, सेकंड प्रिंट करेगा ईएमपी चला जाएगा आगे, फोर्थ प्रिंट करेगा ईएमपी चला जाएगा आगे, फिर आगे ईएमपी जाएगा, उसके बाद इट विल जस्ट कम आउट। सो सी, नाउ इट हैज एक्चुअली प्रिंटेड दिस जो पहला वाला डेटा है, इट इज विद द एरे passing as an input argument to the function, whereas second is what? Passing array as a pointer to the function। ये जो स्ट्रक्चर के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप किसी भी टाइप का एरे अगर इनपुट देते हो फंक्शन को, और अगर आप उसको पॉइंटर में अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो, राइट, तो आपको इसी तरीके से वो लॉजिक हैंडल करना है, राइट? नाउ व्हाट इज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर? अभी हो सकता है कि आपने एक कंपनी या फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, राइट? एक्स वाई जेड कंपनी आपने ज्वाइन किया, लेकिन उस कंपनी में हो सकते हैं 15 डिपार्टमेंट्स हो, 15 डिफरेंट टीम्स हो।
आप 15 के 15 टीम्स का तो हिस्सा नहीं होने वाले हो, तो आप पर्टिकुलर किसी टीम का हिस्सा होगे, राइट। और फिर उस टीम के अंदर भी अगेन आपका मैनेजर रहेगा, तीन चार मैनेजर रहेंगे, और उसमें से एक मैनेजर को आप रिपोर्ट करोगे, या फिर आपका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा उस टीम के अंदर, आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको एक और एक स्ट्रक्चर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहेगा, और एक स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो क्या हम क्या करेंगे अभी, लेट से एक और एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रक्ट टीम करके। करेक्ट। अभी स्ट्रक्ट टीम में क्या रहेगा, इट विल बी अगेन अ टीम नेम, लेट से, राइट, विल कीप इट नेम ओनली। देखिए अभी ए वाला नेम मतलब क्या, इंप्लॉय का नाम है, और ए वाला नाम मतलब क्या, टीम का नाम, रिमेंबर। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ नेम। अभी और क्या हो सकता है टीम के अंदर, राइट। देन इट कैन बी ए टीम साइज, आपके टीम का साइज कितना है, राइट। लेट्स कीप इट दिस ओनली, दिस टू ओनली। और आपका मे बी फंक्शन, राइट, आप क्या काम करने वाले हो, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन 10, राइट। दिस कैन बी लाइक आप हो डेवलपर हो, आप टेस्टर हो, right, what exactly are you going to work on the documentation, right, that way, or maybe responsibility और work, responsibility रख सकते हैं, right। Let's, अभी हमको इस ये हर एक एम्प्लॉय का हिस्सा रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक स्ट्रक्ट टीम करके एक अलग से वेरिएबल डाल देंगे, टीम, टीम डिटेल्स, राइट। जनरली ये कैपिटल रखना चाहिए, सो दैट इट्स ऑलवेज गुड फॉर द नेमिंग कन्वेंशन और स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, राइट। तो अभी क्या हो गया, हर एक एम्प्लॉय का पास उसका नाम है, उसका एम्प्लॉय आईडी है, उसका सैलरी है, और वो किस टीम का हिस्सा है, और इस टीम के अंदर क्या है, नेम, टीम साइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम फिर इसको असाइन कैसे करेंगे, राइट। तो ये जो डेटा रहेगा वो फिर से इस तरह से रहेगा, किसी एम्प्लॉय का अगर लेट से टीम नेम लेट से ABC, राइट, लेट से टीम का साइज है 7 और रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट, करेक्ट। तो इस तरह से रहेगा, तब अभी हम हर एक एलिमेंट में उसको ऐड कर देते हैं। ये देखो, ये जो पांचों के पांचों है, इसके यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ABCDev, ये XYZ टीम का हिस्सा है, जिस टीम की साइज है 10, एंड गोइंग टू वर्क एज व्हाट, टेस्टर। देन दिस इज समथिंग, लेट्स से DEF, इसका साइज है 15, राइट, एंड गोइंग टू बी लेट्स से documentation, okay। Then this is the fourth one, let's say, is part of DEF only with 15 size, क्योंकि ये दोनों भी एक ही टीम में, लेकिन अभी इसका साइज हो गया है 16, क्योंकि निकिन ऐड हो गया, एंड अगेन डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ओके। नाउ लेट्स से अगेन डेवलपर हम और एक ऐड कर देते हैं इसमें, सो हियर इज अ डेवलपर ABC, अभी इसका साइज हो गया 8, राइट। सो अभी अगर इसका डेटा हमको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, करेक्ट, वी शुड बेसिकली हैव देन हियर, राइट, लाइक tab team name, right, or team rather, /t/t should be what it is. Then what we have, team size. Then what do we have, responsibility, right। सो ये वाला प्रिंट होगा। तो हमको यहाँ पे और तीन चीजें ऐड करनी पड़ेगी, printf,
that is going to be presented as team name. अभी इसको ऐड कैसे करना है? See, empi, okay, dot. जैसे हम empi dot देंगे, it will basically be a team. उसके अंदर से team, and then we will have its name, right? This is how it is going to be. Then similarly, we will print team size. It is what is the variable name? We have kept it team size, and then the rest, right? So this would be a team size, and then this should be a D. This should be yes, and then this should be a not a size. This should be responsibility. Yeah. So this is how you should add it. Now यहाँ पे हम लोगों ने जैसे तीन ऐड किए, right? Same thing you need to add it in the another function with the pointer too, जो हम pointers access कर. So ये हो गया यहाँ पे. Then these three things. Control C. I'm just maybe trying to uh, do trying to save some time by copy paste stuff, right? But here it won't be imp I, rather it will be what? A structure. Rather this will be a structure, right? See, अभी यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, देखो टीम करके एक वेरिएबल है. Yeah, yeah. So this is how it is going to be. Now let's see whether this is successfully runs or not, right? So when we run it, it gives some errors. What it is? It says array char is too long. Why? Ah, what happened here? Basically, we we gave a semicolon there. Okay. So now it says array of chars is too long. So see, what is the error are we getting? It says array of chars is too long. Chars is too long मतलब array हमने कहीं पे लिखा है जिसका साइज हमने कम दिया है लेकिन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, राइट? सो साइज हमने ये कैरेक्टर एरिया यहाँ पे नेम लिया हुआ है, दैट्स वन थिंग. देन वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नेम. तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन ये जो स्ट्रिंग है ये 10 से ऊपर है, राइट? सो वी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बिलो 10. सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, राइट? एंड वी आर सीइंग इट इज ऑफ ओनली 10, करेक्ट? सो साइज फिट नहीं हो रहा है. सो नाउ इफ वी ट्राई टू रन इट, see, it is now simply printing the complete data. Index, name, employee ID, salary, team. Correct. This is how it is. So, this is how you can have the nested structures. Okay. Now, let's look at what is union. Structures में हम इतना ही cover करने वाले हैं. Let's look at what is union. Okay. Now, let's try to maybe create a new file, right? This is a standard structure we follow. Int main. It's a default and mandatory function. अब एक काम करते हैं हम लोग, we will have the union here. Union, yeah. Union, maybe what do we want to have? Some good name, which will maybe, let's say, for now, let's say a value, some value, right? A value of variable. So value of variable can be integer, it can be a float, it can be a character, right? Let's say name or some char, uh, yeah, some name.
right? So, and if I say struct, this keyword is like all in, that's right. So value is one union, and whereas value 2, let's say value 1 and value 2. Okay, same things we will have it here. Now let's see what is a size. दोनों का size क्या है हम देखते हैं. Printf size of struct %d. So it will be of size of operator and struct value 2. Struct value 2. Then let's try to print a size of union. So this will be what? Union. This one, correct? Let's see what does it give, right? So let's run it. If we run it, it is running with zero and nothing, zero errors. So size of struct is 20 bytes and union size is what? 12 bytes. Why? See, two bytes are always there additional as there is a one hidden pointer kind of thing, right? Yeah. So see, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबका सबके लिए मेमोरी अलोकेट होती है. इसके लिए 4 बाइट हो जाएगा, इसके लिए 4 बाइट हो जाएगा, इसके लिए 10 बाइट्स हो जाएंगे, राइट? एंड एडिशनल 2 बाइट्स, करेक्ट. सो व्हाट बेसिकली इट विल हैव 10, 18 एंड 20 बाइट्स. लेकिन यहाँ पे यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ओनली जितने यहाँ पे वेरिएबल्स दिए है उसमें से सबसे मैक्सिमम जो है लार्जेस्ट नंबर लिया जाता है. इसके लिए 4 है ना, इसके लिए कितना लगता है 4, करेक्ट. फॉर दिस इट विल बी व्हाट, basically 4. For this it will be what, 10. But ये सबसे it will only allocate a memory for 10 bytes. Okay, and so plus 2 bytes वाला जो रहेगा, right, that basically इसलिए इसका साइज आता है 12 bytes. अभी ऐसा क्यों? So this is the main difference. स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी वेरिएबल्स के लिए जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स है सबके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन यूनियन में खाली सबसे बड़े के लिए होती है. क्यों? क्योंकि यूनियन में एट ए टाइम आप एक ही वेरिएबल एक ही एलिमेंट एट्रीब्यूट का वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आप सबके वैल्यूज रहते हैं. सो स्ट्रक्चर इज बेसिकली एक रिकॉर्ड के लिए लिया जाता है, राइट, एज अ रिकॉर्ड. लेट्स से पर्सन का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, राइट. लेकिन यूनियन कहाँ पे लिया जाता है, यूनियन में जहाँ पे आपको ऑप्शंस हो कि नहीं, ये एक वैल्यू है, इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन तीनों में से एक ही होगा, सब तीनों के तीनों नहीं रहेंगे. So when there is a choice and you have to give only one value, at that time you need to use union. लेकिन स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूज करना है. रिमेंबर दैट्स व्हाई द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. अब ये स्ट्रक्चर के साथ तुम लोगों ने बहुत एक्चुअली वी हैव सीन द थिंग्स, राइट. सो लेट्स मे बी सब कुछ जितने ऑपरेशंस आप स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हो वैसे यूनियन के साथ भी कर सकते हो. ओनली डिफरेंस क्या होता है कि ये एक ही वैल्यू स्टोर करता है एट अ टाइम, ये सबका वैल्यू स्टोर नहीं करेगा. अगर आपने पहले किसी का वैल्यू इंटीजर का स्टोर कर लिया है तो ये बाद में अगर आप कैरेक्टर से ओवरराइड कर रहे हो तो इंटीजर का वैल्यू चला जाएगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल मे बी, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम यूनियन, राइट. So let's say if I declare union, rather value 1, I would say value is the good option, good name, maybe value v, right. Now v dot x, v dot x में मैंने 20 इंटर कर दिया, करेक्ट. नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द v dot x. printf
यूनियन इंटीजर x इज इक्वल टू परसेंट डी, करेक्ट। सो ये v डॉट एक्स आ जाएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, x का वैल्यू असाइन कर दिया। इसका मतलब कि आप y और नेम असाइन नहीं कर सकते, उसने ऑलरेडी एक चॉइस, एक एक वैल्यू ले लिया है, आप तीनों में से एक को ही असाइन कर सकते हो, करेक्ट। नाउ इफ आई प्रिंट इट, सी इट विल से इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे v डॉट नेम और लेट्स से v डॉट y इज इक्वल टू प्रिंट कर दिया 45.0, अभी x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x है और मैं इसको y भी प्रिंट करता हूँ अभी, लेट्स से, सो यू विल सी व्हाट इट एग्जैक्टली, राइट, फ्लोट y, so this is going to be percent f। तो अभी क्या हो, पहले हमने बोला कि v का क्या है, इंटीजर है, v में इंटीजर को इनिशियलाइज करना है। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, v के फ्लोट को इनिशियलाइज करना है। तो जैसे हम v डॉट वाई इनिशियलाइज करते हैं, v डॉट एक्स का वैल्यू गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही मेमोरी लोकेशन है, वो तीनों में से एक ही को अलाउ करेगा। तो अब जब v डॉट एक्स प्रिंट करने जाओगे, राइट, लेट्स से यहाँ पे बिफोर, बिफोर इनिशियलाइजिंग y, करेक्ट, ये बिफोर है, तो बिफोर तो बराबर प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जब हम प्रिंट कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने v डॉट एक्स को ही असाइन किया और कोई उस यूनियन के अंदर किसी भी और वेरिएबल को असाइन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि v डॉट वाई इज इक्वल टू 45.0, मतलब क्या, दिस इज गॉन। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, गार्बेज प्रिंट करेगा और v डॉट वाई का वैल्यू एक्चुअली प्रिंट होगा, राइट, दैट्स हाउ द यूनियन इज वर्क। सी, सो सबसे पहले बिफोर में क्या है, 20, इट्स करेक्ट। लेकिन जैसे हमने v डॉट वाई को 45 कर दिया, अभी x में पूरी गार्बेज वैल्यू है, x में पता ही नहीं उसमें क्या है, राइट, बिकॉज द जो पहले डिक्लेयर किया था या फिर असाइन किया था x का वैल्यू, दैट इज गॉन। यूनियन डजंट अलाउ इट, द यूनियन ओनली अलाउज द ओनली वन वैल्यू आउट ऑफ इट, राइट, y का वैल्यू 45। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यूनियन वर्क। सो आप यूनियन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ जितना कुछ किया, राइट, ऑल दैट स्टफ वर्क्स विद यूनियन एक्सेप्ट दिस वन थिंग। ओके, नाउ let's basically go back to the presentation, what we have it, right. So this is what we just saw. A union is a user defined type similar to struct in C, except one key difference: structures allocate enough space to store all their members, whereas unions can only hold one member value at a time, right. So syntax of union इस तरह से होता है। कार का नाम क्या है, प्राइस क्या है, तो इन दोनों में से एक ही चीज रहेगी, तो नाम, एक तो प्राइस रहेगा। अगर आप सेम सिमिलर तरीके से आप उसके वेरिएबल्स क्या करते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सबसे पहला डिफरेंस है कीवर्ड। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट यूज करते हैं, यूनियन में यूनियंस कीवर्ड यूज करते हैं। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन allocates a separate memory locations allotted to every input member। स्ट्रक्चर के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं सबके लिए मेमोरी अलोकेट होती है। इट अलोकेट्स ओनली मेमोरी फॉर द लार्जेस्ट इनपुट डेटा मेंबर, राइट। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा जो मेंबर रहेगा उसके लिए मेमोरी अलोकेट होगी। एक्सेसिंग मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो एक ही टाइम में, लेकिन आप यहाँ पे एक टाइम पे एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हो, राइट। एक कीवर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने डबल हो गया है शायद, राइट। कीवर्ड इज स्ट्रक्ट, कीवर्ड इज यूनियन, राइट। यू इज स्मॉल। साइज, साइज क्या होती है इसकी, सम ऑफ इट्स डेटा मेंबर्स, जितने उसके अंदर मेंबर्स है उस सबके डेटा मेंबर्स का साइज मिला के साइज होगा स्ट्रक्चर का। लेकिन यूनियन का साइज क्या रहता है, ओनली लार्जेस्ट नंबर मेंबर का रहता है। वैल्यू अल्टरिंग, आप कभी भी मतलब किसी भी मेंबर का वैल्यू अल्टर कर सकते हो, बिकॉज हर एक के लिए सेपरेट अलोकेटेड स्पेस रहता है। यहाँ पे आप किसी एक का अगर आपने वैल्यू चेंज किया तो वो किसी और के वैल्यू पे अफेक्ट हो जाएगा। तो यू नीड टू वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग यूनियन। इनिशियलाइजेशन, सो यू कैन इनिशियलाइज मल्टीपल मेंबर्स एट द सेम टाइम, लेकिन यहाँ पे आप एक ही मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट। होप यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस।
Now, what are we going to cover in the next video? In next video, we will cover the what is extern, type def, enum, static keywords, and the storage classes. Okay, so that's all I had it from this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे, और do share it with others as well so that others will also get benefit of uh, this video, this knowledge. Please do not forget to like, subscribe, and share. I wish you happy learning with the Gravity Deck. Thank you. Bye.